வார்த்தைக்கு நிலை நின்று கர்த்தாவே அவர்கள் உங்கள் வார்த்தையை நெஞ்சில் கொண்டு தேவனே அவர் அனுதினமும் கர்த்தாவே அந்த வார்த்தையின் மூலமாக வளர கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன். தேவனே ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வாதத்தை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இன்றைய தினத்தில் கர்த்தாவே நாங்கள் வார்த்தையாக வந்திருக்கிறோம். வார்த்தைகள் மத்தியில் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வார்த்தை கொடுக்கிற தேவசனை கர்த்தாவே நீர் தாமே மறைத்து கர்த்தாவே நீர் பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அந்த வார்த்தை கர்த்தாவே நீர் எங்கள் உள்ளத்தில் நிறைவேற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எந்த வார்த்தை கர்த்தாவே விழுகிறதோ கர்த்தாவே அவைகளை நாங்கள் பயபக்தியாக கொண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தப்பட நீர் கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன். எங்களுக்கு கர்த்தாவே எந்த குற்றங்கள் காணப்படாதவாறு கர்த்தாவே இந்த நெகட்டிவ் வேர்ல்ட்ல நாங்கள் வாழ்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நெகட்டிவ் வேர்ல்ட்ல நாங்கள் இருக்கிறோம். ஆனாலும் எங்களுக்காக கர்த்தாவே நீர் ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல நீ கொண்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே. அந்த பரிமாணத்துக்கு நாங்கள் செல்ல கர்த்தாவே நீர் கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன். தேவனே அந்த பரிமாணத்தை நீர் உங்கள் கண்ட்ரோல்ல வைத்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே. இப்பொழுது நாங்கள் காணக்கூடாத அந்த உலகத்தில் நாங்கள் செல்ல நீர் கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன். தேவனே நீர் எங்களுக்காக கர்த்தாவே உமது பிதாவின் எங்களுக்கு மத்தியிலும் பிதாவின் இடத்தில் நீர் பரிந்து பேசுகிறீர்கள் கர்த்தாவே. பரிந்து பேசுகிற கர்த்தாவே நீர் கர்த்தராக இருக்கிறேன். எங்களுக்காக நாங்கள் செய்கிற பாவங்களுக்காக நீர் பிதாவின் இடத்தில் பரிந்து பேசுகிறீர்கள் கர்த்தாவே. அந்த விதமான இடத்தில் கர்த்தாவே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி மேலும் மேலும் நாங்கள் வார்த்தையில் வளர வேண்டும் கர்த்தாவே. எங்களை ஒவ்வொரு பரிசுத்தப்படுத்தும் கர்த்தாவே. குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் எந்த விதமான சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் பாடுகள் வராதவாறு கர்த்தாவே நீர் தாமே கர்த்தாவே எல்லா குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்க ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. யார் யார் என்னென்ன வேண்டுதலோடு ஜெபிக்கிறார்கள் கர்த்தாவே எல்லா வேண்டுதலும் நிறைவேற்றி தர வல்லவராக இருக்கிறேன். நீர் தாமே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் எல்லா வேண்டுதலும் நிறைவேற்றும் கர்த்தாவே. இன்றைய தினத்தில் கூட கர்த்தாவே உலகங்களுக்கும் கர்த்தாவே ஏறெடுக்கிற எல்லா ஜெபங்களையும் கர்த்தாவே நீர் கண்ணோக்கி பார்க்கிறேன். இருந்தாலும் கர்த்தாவே எங்களுக்காக கர்த்தாவே சொந்த ஜனங்கள் நீரும் யூத ஜனங்களை கர்த்தாவே கண்களை குருடாக ஆக்கினீர் கர்த்தாவே. ஏனென்ற கர்த்தாவே புறஜாதிகள் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட கர்த்தாவே எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் கர்த்தாவே. உமது அழைப்பை ஏற்று நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். அந்த அழைப்பில் கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தப்பட நீர் கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன். எங்களிடத்தில் கர்த்தாவே நீர் வெளிப்பட வேண்டும் கர்த்தாவே. நீர் கிறிஸ்துவை நாங்கள் வெளிப்படுத்தி காட்ட நீர் கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல உங்கள் வார்த்தை வளர நீர் கிருபை செய்ய ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் தாழ்த்துகிறோம். எங்களை அனுதினம் பரிசுத்தப்படுத்தி உமது வார்த்தை வளர நீர் கிருபை செய்ய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். आइए हम लोग वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। मत्ती 22वां अध्याय उसमें 12, 13, 14 को पढ़ते हैं। ஸ்நேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான். அப்பொழுது ராஜா பணிவிடைக்காரரை நோக்கி, இவனை கையும் காலும் கட்டி கொண்டு போய் அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிற புறம்பான இருளிலே போடுங்கள் என்றான். அந்தபடியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர், தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலர் என்றார். उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? बस बैठ सकते हैं। पिछले अप्रैल महीना 3 तारीख को राजा बाबू और सारा का शादी का जो है पहला अनाउंसमेंट हुआ था, और आज जो है उनके लिए शादी का दूसरा अनाउंसमेंट है। बाबू लेट सेल्वी का बेटा राजा बाबू और पद्मा लेट डॉक्टर कोंडाना कोरवानी, उनका बेटी सारा, इन दोनों का शादी जो है 1 मई को मॉर्निंग 9 बजे से यहाँ इसी चर्च में होगा।
तो उनके लिए ये शादी का दूसरा अनाउंसमेंट है। इनका शादी नहीं होने के कारण, सही कारण कुछ होगा तो आप लोग अभी आपके पास्टर के पास लिखित रूप में दे सकता है, अन्यथा इस शादी अच्छे से होने के लिए आप लोग अपने निज दुआ में याद कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। हमारे कलीसिया के दोनों एल्डर भाई को मैं आगे बुलाऊंगा, जसमान और सबेसर। ये दूल्हा का घर के तरफ से ब्राइड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पूरा चर्च के लिए एक ही कार्ड अपने कलीसिया के एल्डर भाई लोगों के हाथ में सौंपता हूं, और सभी परिवार को आमंत्रण है, सब लोग इस शादी में आ जाइए। थैंक यू सर। वापस फिर से उस वचन को पढ़ेंगे हम लोग। उसने उससे पूछा, हे पित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। हाँ। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ। इसका हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए गए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परंतु चुने हुए कितने हैं बोलता? थोड़े हैं। हालेलुया। ये 22वां अध्याय में यदि हम लोग पहले से पढ़ेंगे, पहले से पढ़ना बेटा। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य हाँ। उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हाँ। और उसने अपने दासों को भेजा, हाँ। कि निमंत्रित लोगों को हाँ। विवाह के भोज में बुलाए। देख लेना, यहां शास्त्र कहता है, प्रभु दृष्टांतों से बात करता है। बेटा ये स्टैंड को थोड़ा ऊपर करना, सर कट रहा है, वो जो हैंडल है उससे घुमा, और तो ठीक। यहां हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं, परमेश्वर दोबारा उनसे किससे बात किया बोलता? हेलो, किससे बात किया? आप लोगों से पूछ रहा हूं। एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है चर्च। गीत गाने के टाइम में साइलेंस मोड, प्रार्थना करने के टाइम में साइलेंस मोड, संदेश के टाइम में साइलेंस मोड। शास्त्र कहता है फिर से दोबारा उन लोगों से क्या किया बोलता? दृष्टांतों से बात किया। किससे बात किया? दृष्टांतों से बात किया। स्वर्ग का राज्य अपना पुत्र को शादी करने का या शादी किया एक राजा का तुल्य है, और बुलाए गए हुए लोगों को शादी के लिए न्योता दी, और अपने सेवक गणों को क्या किया? राजा ने भेजा। लेकिन वे लोग आने के लिए उनके पास क्या नहीं था बोलता? मन नहीं था। मन रहेगा तो वक्त आएगा। हालेलुया। शादी के लिए न्योता मिला, और शादी के लिए न्योता मिलने के बाद यहां शास्त्र कहता है उन लोगों को आने के लिए क्या नहीं था बोलता? मन नहीं था। किसके पास मन नहीं है बताओ? सभी के पास है? कोई बिना मन का है? सभी का पास मन है, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए क्या नहीं था? मन नहीं था। किसके पास वक्त नहीं है? सभी को 24 घंटा ही है ना?
सबको कितना घंटा है? तो ये 24 घंटे से ही टाइम निकालना पड़ेगा ना प्रभु के लिए, क्या उससे अलग टाइम देगा? अगर प्रभु के लिए टाइम निकालने का तो टाइम रहेगा पक्का नहीं। प्रभु से मिलने के लिए अगर मन होगा तो आप प्रभु के लिए पक्का क्या करोगे? टाइम निकालोगे। यहां शादी के लिए एक राजा अपने बेटे का शादी के लिए न्योता दे रहा है। कौन है वो राजा? हम सबको मालूम है हमारा प्रभु परमेश्वर वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का कौन है? वो प्रभु है। नबियों का वो नबी है। उस परमेश्वर पिता परमेश्वर अपना बेटा के लिए क्या कर रहा है? इधर शादी के लिए एक मेजबानी तैयार किया और उसमें सब लोगों को क्या दे रहा है? न्योता दे रहा है, आओ। लेकिन उन लोगों को आने के लिए क्या नहीं था? मन नहीं था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारे अंदर परमेश्वर के लिए क्या होना चाहिए? जगह होना चाहिए। परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। परमेश्वर के साथ में हम लोग क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। अभी आप समय नहीं निकालोगे तो फिर कभी निकालोगे? यदि अभी मैं परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालूंगा तो कब निकालूंगा? यदि आप मैं परमेश्वर से बात नहीं करूंगा तो कब करूंगा? बहुत लोग हैं कोमा में पड़ा है, आज भी हजारों के संख्या में विश्व भर में अस्पतालों में पड़ा है। वो स्तुति करने के लिए सोचेगा तो भी स्तुति नहीं कर सकता। प्रभु के भवन में आने के लिए इच्छा करने के बावजूद में भी वो क्या नहीं कर सकता? प्रभु के भवन में आ नहीं सकता है। लेकिन हम लोगों को तो प्रभु सुरक्षित रखा, हम लोगों को तो प्रभु चंगा रखा, हम लोगों को तो प्रभु भला रखा। तो फिर मन बनाओ किसके लिए? प्रभु के घर में आने के लिए। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनने के लिए क्या बनाओ? मन बनाओ। अब यहां न्योता दे रहा है। वो लोग आने के लिए उनके पास क्या नहीं था? बोलता मन नहीं था। उसके बाद में शास्त्र लेख में देखते हैं वो दूसरा सेवक लोगों को बुलाया, तुम लोग जाकर इस न्योता को मैंने तैयार कर दिया। बहुत सारे जानवरों को क्या कर दिया? मार दिया और सब कुछ तैयार है। शादी के लिए क्या करो? आओ करके लोगों से कहो करके क्या कर रहा है प्रभु? अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को क्या कर रहा है? भेज रहा है। हालेलुया। आपको बुलावट कैसा मिल रहा है? वचन के जरिए मिल रहा है। बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्रांति दूंगा। हालेलुया। तो हमको वचन के जरिए न्योता मिला है। वचन के जरिए प्रभु क्या कर रहा है? बुला रहा है। अब बुलाने के समय में बहुत सारे जानवरें क्या किया? मारकर फीस्ट तैयार है, उधर खाना तैयार है। लेकिन जिन लोगों को लायक समझ के प्रभु ने बुलाया वे लोगों को आने के लिए क्या नहीं था? मन नहीं था। हालेलुया। इसके वजह से वो संदेश किधर मुड़कर आया? हमारे पास आया। अमान्य जाति के पास क्या किया? आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया वे लोग उसको तुच्छ जाना। क्या जाना? तुच्छ जाना। मिस्र देश के अंदर से परमेश्वर का मंडली को जब बाहर लेकर आया प्रभु, कानान के अंदर प्रवेश करने तक उनको रास्ते में मन्ना को खिलाया। कानान में जाने तक प्रभु क्या कर रहा है? उनको रास्ते में मन्ना खिला रहा है, मटन खिला रहा है, सब कुछ खिला के लेकर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो मन्ना उन लोगों को कैसा लगने लग गया? जाते जाते कैसा लगने लगा?
लोग बोलने लगे रोज रोज वही मन्ना, रोज रोज वही मन्ना, रोज रोज वही टेस्ट। स्वर्ग दूतों का खाना को प्रभु ने खिलाया, उसको खिलाने के बावजूद में भी लोग उस खाने को भी क्या समझा? तुच्छ समझा। यहां भी खाना सब तैयार है, लोगों को बुलाने के लिए जब भेजा, वहां बोलता है कि बुलाए गए हुए लोग उसको तुच्छ जाने करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हर एक जन अपना अपना बहाना बताने के लिए चालू किया। 5वां वचन को पढ़ना बेटा। परंतु वे उपेक्षा कर चले गए, हाँ कोई अपने खेत को, हाँ कोई अपने व्यापार को। हाँ अन्य लोगों ने हाँ जो बच रहे थे हाँ उसके दासों को पकड़कर हाँ उनका अनादर किया हाँ। और मार डाला। देख लेना, यहां 5वां वचन कहता है जिनको बुलाया था वे लोग तुच्छ जाने उस बुलावट को, और एक किधर चला गया? खेत में चला गया। एक किधर चला गया? व्यापार को चला गया। किधर चला गया? एक किधर चला गया? खेत में चला गया, और दूसरा किधर चला गया? व्यापार करने के लिए चला गया। सब लोग बहानाबाजी बताने के लिए शुरू कर दिए। क्या करने के लिए? प्रभु बुला रहा है, लेकिन लोगों ने क्या कर रहा है? बहानाबाजी बता रहा है। जरा अपने आप में परख कर देखो, कहीं हम तो बहानाबाजी नहीं कर रहे परमेश्वर के कार्य में आगे आने के लिए, परमेश्वर के काम से पीछे भागने के लिए कुछ ना कुछ बहानाबाजी तो बताकर नहीं घूम रहे। ये मौका बार बार नहीं मिलता परमेश्वर के सेवा करने का या परमेश्वर के साथ में चलने का। हम जिस वचन को प्रचार करते हैं यह अविनाशी है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेगा, कभी नहीं टलने वाला वचन, जिस मेजबानी के अंदर हम लोगों को आमंत्रित कर रहा है प्रभु, अनंत जीवन तक हम लोग उसके साथ में रहने वाले लोग हैं। कब तक? कब तक? अनंत जीवन। अनंत जीवन बोलने से उसका समाप्ति है नहीं। अनंत, ना तो उसको शुरुआत है, ना तो उसको क्या है? अंत है। हालेलुया। ऐसे एक राज्य के अंदर हम लोग प्रवेश करने वाले लोग। यहां शास्त्र ले कहता है जिन लोगों को प्रभु ने बुलाया था वे लोग उसको तुच्छ जाने। एक कहा मैं खेती बाड़ी करने के लिए जा रहा हूं, और एक बोलता है कि भाई किधर चला गया? व्यापार को। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये सारी चीजों को हम लोग यहां पर ही छोड़कर जाने वाले हैं। ये सारी चीजों को हम लोग कहां पर छोड़कर जाने वाले हैं? यहीं पर क्या करने वाले हैं? छोड़कर जाने वाले हैं। अब ये लोग नकार देने के बाद शास्त्र में कहता है, संदेश किधर जा रहा है? देखिए 7वां वचन को पढ़िए, 6 और 7 को वापस पढ़िए। अन्य लोगों ने हाँ। जो बच रहे थे, अन्य लोग जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया, उनका अनादर किया और मार डाला। और क्या कर दिया? मार डाला। तब राजा को क्रोध आया। सभी भविष्यद्वक्ताओं को तकलीफ दिया है। सभी प्रभु का दास लोगों को क्या किया है? तकलीफ दिया है। आखिर में उसका पुत्र आया, उसका पुत्र को भी क्या कर दिया? वधस्तंभ पर मार दिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 7वां वचन कहता है राजा उसको सुनकर क्रोधित हो गया और अपनी सेनाओं को भेजकर उन हथियारों को क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया, और उनके शहर को भी क्या कर दिया? जला दिया। किंग टाइटस के समय में यही काम पूरा हुआ। मसीह के बाद जब यरूशलेम को चारों ओर क्या कर लिया? रोमियों का सेना घेर लिया, ना अंदर का आदमी बाहर आ सकता, ना बाहर का आदमी क्या कर सकता? अंदर जा सकता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का दास, भविष्यद्वक्ता, इनके सेवक गणों को
लोगों ने तकलीफ दिया, उनको हत्या किया। प्रेरितों को आप देख लीजिएगा, सभी लोग खून का गवाह बनकर मरे हैं, शिवाय यूहन्ना को छोड़कर, जो प्रकटीकरण में पद्मो टापुस में जाकर अब के जमाने में जो होने वाले सारे बातों को जो देखकर उसने क्या किया, लिखकर रखा है शास्त्र लेख के अंदर। उसके अलावा बाकी सारे लोग क्या बने, खून का गवाह बनकर मरे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब यरूशलेम के चारों ओर सेना घेर लिया, कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं, खाना सब खत्म। अब भी देश विदेश के अंदर हालात देखिए, सभी जगह में महंगाई का कहर चल रहा है। बहुत ही क्रिटिकल समय में हम लोग क्या कर रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। दुनिया के लिए ये क्रिटिकल है, लेकिन दुल्हन के लिए ये क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि ये अपने दूल्हा से मिलने का बहुत करीब 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 आकर पहुंच गई है। हालेलुया। कभी भी प्रभु का आगमन क्या कर सकता है, हो सकता है, और प्रभु अपने दुल्हन को लेने के लिए वो आने वाला है। आपको पता है, इन लोगों के वजह से प्रभु ने इनको पूरा दुनिया में क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। और वापस मैं तुम लोगों को एकत्रित करूंगा करके जो प्रभु ने वादा किया, उस वादा के अनुसार वापस इस्राएलियों को क्या किया, प्रभु ने एकत्रित किया। उनका एक देश बन गए, एक झंडा बन गया, सेना बन गया, उनका पैसा बन गया, सब कुछ तैयारी में है। नबी कहने के समय पर कहता है, अंतिम समय का घड़ी अगर आपको देखना है तो किसको देखो, इज़राइल को देखो। किसको देखो, इज़राइल को देखो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां उसने अपने सेना को बेचकर उन सारे हथियारों को नष्ट किया और उनके शहर को भी क्या कर दिया, जला दिया। इसके पहले जो सीन हुआ, वहां लोग भूखमरी से मरे, लोगों को खाना नहीं मिला, एक दूसरे के बच्चे को क्या करने लगे, काट कर खाने लगे। लोग घास पौधे पत्ते खाकर दिन निकाले प्रियो। और जिधर जिधर जैसा जैसा रास्ता मिला वैसा वैसा वो लोग क्या किए, अपना जगह को छोड़कर क्या किए, भागने लगे। प्रभु लेकर भी गया, प्रभु वापस क्या किया, उनको लेकर भी आया। हालेलुया। अब देख लेना, 8वां वचन कहता है, पढ़िए। तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का बोझ तो तैयार है, विवाह का बोझ तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग हाँ, योग्य नहीं ठहरे। परंतु निमंत्रित लोग जो है कैसा नहीं था, योग्य नहीं था। योग्य नहीं है तो प्रभु के अंदर तुम आ नहीं सकते। अभी अपने आप को योग्य बनाओ, किधर जाने के लिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए। प्रभु के राज्य में जाने के लिए अपने आप को आप कैसे योग्य बना सकते हैं, परमेश्वर के कलाम के अनुसार ही क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। हालेलुया। यदि अभी हम अपने आप को योग्य नहीं बनाएंगे तो परमेश्वर के उस जीवनहार में हम लोग जा ही क्या नहीं कर सकते, नहीं सकते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है, शादी का जीवनहार क्या है, तैयार है। आपको पता है, अगास्वेरू राजा वस्ती को बुलाकर लोगों के बीच में दिखाना चाहता था, लेकिन वस्ती ने क्या किया, क्या किया, उस राजा का शब्द को आदर किया, हाँ, आदर किया नहीं किया। क्या किया उसने, इनकार किया। इनकार करने की वजह से क्या हुआ, उसको पकड़ के रखा, क्या उसको हटा दिया। हालेलुया। प्रभु के योग्य और भावता हुआ जीवन नहीं होगा, अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया। ये बस्ती को हटाकर प्रभु ने किसको लेकर आया उधर, यस्तर को लेकर आया। किसको लेकर आया, यस्तर को लेकर आया। हालेलुया। यस्तर का गुण, यस्तर का स्वभाव जरा यस्तर के किताब के अंदर चेक करके देख लेना। आज हमारे के अंदर वो गुण क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। उस राजा को हम लोग क्या करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। कभी कभी प्रचारक लोग आते हैं, कोई कुछ प्रचार कर देता, कोई कुछ प्रचार कर देता,
2 हफ्ते पहले आप लोगों ने सुना ललकार का आवाज जो है वो थर्ड कमिंग के टाइम में जो खुलेआम प्रभु आने वाला है करके वो बंदा बोलकर चला गया। अनुवाद तो मैं ही कर रहा हूं बाजू में, लेकिन वो प्रीच करने के टाइम में कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन दूसरा गए संडे में आया, उसको बराबर रेक्टिफाई करके प्रभु चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो भी जो रेक्टिफाई करके गया ना, उनको तो मालूम नहीं था क्या प्रचार हुआ इधर करके। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। हालेलुया। कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है। देख लेना, ये भी बंदा कुछ साल पहले क्या मैसेज के अंदर थे? आगमन हो गया करके मैसेज के अंदर थे। क्या करके? आगमन हो गया करके। देख लेना, परमेश्वर का कलाम के अनुसार धीरे धीरे हम दौड़ेंगे, लेकिन सही रास्ते में हम दौड़ेंगे। हालेलुया। ना तो हम आगमन हो गया करके गया नहीं, ना तो थंडर ग्रुप में गया नहीं। हालेलुया। ना तो प्रभु बोझ के पहले हम पैर धोया नहीं। सारा चीज बाइबल के अनुसार हम लोग बराबर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। हालेलुया। तो यहां शास्त्र में कहता है, जिनको प्रभु ने बुलाया उन लोग उसके लिए क्या नहीं थे? वो लोग योग्य नहीं थे। 8वां वचन को पढ़ना बेटा। तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। क्या नहीं ठहरे? योग्य नहीं ठहरे करके प्रभु ऐसी छोड़ने देता। प्रभु के पास जो जगह है वो खाली नहीं रखता। तुमको बुलाता, अगर तुम नहीं आता, तुम्हारे जगह को दूसरा कोई लेके आके उधर प्रभु क्या करता? उधर फिट कर देता है। हालेलुया। यहां देखिए, उसके बाद में 9वें वचन में क्या कहता है? देखिए, इसलिए चौराहे पर जाओ, चौराहे पर जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिले, जितने भी लोग तुम्हें मिले, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। किधर? चौराहे पर। किधर जाकर प्रीच करो? चौराहे पर जाकर प्रचार करो। चौराहे पे किन लोगों को प्रचार करो? पढ़ो नीचे। सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हाँ। अतः उन दासों ने सड़कों पर हाँ। जाकर हाँ। क्या बुरे, हाँ। क्या भले, हाँ। जितने मिले, हाँ। सबको इकट्ठा किया। देख लेना, क्या बुरे, क्या भले, जितने भी मिले, सबको क्या किया? इकट्ठा किया। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है, यहां जब आखिरी आवाज आ रहा है मेजबानी का, जाओ लूले को बुलाओ, लंगड़े को बुलाओ, अंधे को बुलाओ। हालेलुया। मतलब हीलिंग सर्विस। क्या चला रहा है उधर? चंगाई सभा चला रहा है। हालेलुया। चंगाई सभा चलाकर वहां क्या भले क्या बुरे, सबको क्या करो? बुलाकर लेकर आओ। जाल फेंकने के समय में ये मत सोचो कि केवल मछली ही आता है, या गल डालने के टाइम में भी केवल मछली ही आता करके मत सोचो। मुझे मछली पकड़ने का शौक है। मैं जब गल डालता हूं ना, उस गल में कभी कछुआ आया, कभी झींगा आया, कभी केकड़ा आया, कभी मच्छी आया। इस तरह का तरह तरह का वैरायटीज का क्या होता है जंतुए वहां पानी के अंदर का मिलता है। वैसे ही सुसमाचार रूपी इस जाल को भी डालने के समय में बहुत सारे किस्म के आते हैं। कुछ लोग चंगाई पाने तक आते, चंगाई मिल गया, टाटा बाय बाय, चलो निकल गए। कुछ लोग अद्भुत कामों को देखने तक आते, अद्भुत काम हो गया, उसके बाद में बाय बाय टाटा करके क्या हो जाते? चले जाते। मानना नहीं, लेकिन अपना ड्यूटी अपने को करना है। भले लोग टिके या ना टिके, लोग सुने या ना सुने, प्रचार करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि वचन ही आपको आपके जीवन के अंदर क्या लेकर आ सकता? परिवर्तन को लेकर आ सकता। हालेलुया। वचन ही क्या कर सकता? आपके जीवन में
परिवर्तन को लेकर आ सकता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब जाकर ये लोग चौराहे पे खड़े कर प्रचार किया। बहुत बड़ी भीड़, वो पूरा बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गया। आपको पता है अंतिम समय में जो भेजा गया नबी के जरिए, जहां जहां मीटिंग हुआ, कहीं हजारों में इकट्ठे हुए, कहीं लाखों में इकट्ठे हुए। कोई देश में लाखों में क्या हुए, एकत्रित हुए। क्यों? अपना भारत देश में ही कई लाख लोग उसके मीटिंग में एकत्रित हुए, कई लाख लोग। और उस मीटिंग में शामिल हुआ उनका बेटा इधर बैठा है। काफी लाखों लोग एकत्रित हुए। क्या वो लाखों लोग उस मैसेज के अंदर आ गए? नहीं है। बुलाए गए हुए बहुत है, लेकिन चुने गए हुए लोग कितना है? थोड़ा है। अगर इस मैसेज के अंदर के कलीसियाओं के यदि तुलना करेंगे मुंबई से ज्यादा मैसेज के अंदर देखेंगे तो भीड़ भाड़ पंजाब में आपको मिलेगा, और भीड़ भाड़ देखना चाहता है तो आंध्रा में मिलेगा। बहुत संख्या में क्या है इस मैसेज के अंदर लोग हैं। उसके मुकाबले में मुंबई के अंदर क्या है? कम है। किसी के पास 20 बिलीवर है, किसी के पास 25 बिलीवर है, सब बन गए पास्टर। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र में कहता है चौराहे में जाओ, प्रचार करो लोगों को और लेकर आओ उनको। किधर? इस मेजबानी के अंदर। क्या हुआ उधर इस बात आने के बाद? 10वां वचन को पढ़ना बेटा। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, उन दासों ने अभी किधर चला गया? सड़कों में जाकर। हाँ, क्या बुरे क्या बुरे क्या भले क्या भले जितने मिले जितने भी मिले, सब क्या बुरे क्या भले जितने भी मिले, उनको सबको क्या किया? लेकर आया। किधर लेकर आया? प्रभु के घर में लेकर आया। हालेलुया। किधर लेकर आया? प्रभु के घर में। दाऊद नबी कहता है आओ हम परमेश्वर के घर में चलेंगे करके जब लोगों ने कहा प्रभु के घर में चलेंगे करके, मेरा मन क्या हो गया? बोलता आनंदित हो गया। हालेलुया। आज हमारा मन क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। आज हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। आज हमारा मन खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज वो दिन है जो आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग जाने के लिए मार्ग तैयार किया गया है। हालेलुया। आज वो दिन है जो प्रधान याजक साल में एक बार अंदर जाता था प्रभु से मिलने के लिए। आज वो दिन है जब प्रभु उस सलीब पर मारा गया। उस समय में मंदिर का पर्दा क्या हो गया? 2 टुकड़ा हो गया। हालेलुया। अब हर दिन हम लोग प्रभु से मिलने के लिए जा सकते हैं। कभी कभी, हर दिन, हर समय, हर पल, कभी चीज चाहे आप प्रभु से क्या कर सकता है? मिल सकता है, बातें कर सकता है। हालेलुया। तो आज हमारे लिए ये दिन कौन सा दिन है? खुशी का दिन। कौन सा दिन है ये? खुशी का दिन है प्रियो। वो शास्त्र में कहता है जाकर सब लोगों को बुलाकर लेकर आओ। सब लोग तो आ गए, भर गया, पूरा गचा गच भर गया। भरने के बाद वहां राजा अंदर आ रहा है। देखिए 11वां वचन। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने नहीं था। उधर एक व्यक्ति दिख रहा है, उसके पास क्या नहीं था? विवाह वस्त्र नहीं था। अंदर आकर देख रहा है। अंदर आकर देखने के समय में सब लोग ड्रेस कोड में हैं। एक व्यक्ति देखा तो उसके पास वो विवाह का वस्त्र क्या नहीं है? नहीं है। तो बड़ा प्यार से पूछता है। देखो वहां 12वां वचन। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह क्या हो गया? अभी बंद हो गया।
തമിഴിലെ വാസിക്കുന്ന വാർത്തെ அப்பொழுது ராஜா हाँ, तब राजा பணிவிடைக்காரரை நோக்கி हाँ, இவனை கையும் காலும் पन्ने சிநேகிதனே हाँ, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனா இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான் प्रभु बड़ा प्यार से बात करता है। देखिए मित्र क्या बोलता है, ए मित्र तू शादी का वस्त्र के बिना यहां कैसे आ गया। पूरा सस्ता सोचकर बैठा है ना। हम लोग भी इस शादी के मेजबानी में चले जाएंगे और इस शादी का वस्त्र जो है दूल्हा के पास है। इसका विवरण करते टाइम में नबी ईस्टर्न कंट्री के बारे में, उनका रीति रिवाज के बारे में वो वर्णन करता है। दूल्हा जो है अपने शादी के टाइम में शादी में आने वालों को सबको क्या बेचता है, वो कपड़ा बेचता है। वो कपड़े के साथ में ही वो तो क्या करना चाहिए, पहनकर आना चाहिए करके। लेकिन यहाँ जो मेजबानी हो रहा है, इस मेजबानी में हमको शामिल होने के लिए कपड़ा जो है मसीह स्वयं देता है। एवं कौन देता है कपड़ा, वस्त्र कौन देता है, मसीह स्वयं देता है। सारी संस्था सोचकर बैठा है हम भी इस शादी के अंदर चले जाएंगे, हम भी इस उठाए ले जाने में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, नहीं जा सकते। इस समय का संदेश और इस समय का प्रकटीकरण जिनके पास होगा वही क्या कर सकता है, इस उठाए ले जाने में और इस मेजबानी के अंदर क्या कर सकता है, जा सकता है। अन्यथा भूल जाओ। वो आकर बड़ा प्यार से पूछता है, भाई मित्र तो शादी का वस्त्र के बिना यहां कैसे आया। अभी वो एकदम चुपचाप बैठ। अगर उस शादी का वस्त्र क्या है, नबी कहने के समय पर कहता वही पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वही प्रभु का वचन है। आप देख सकते हैं प्रकटीकरण 19वां अध्याय 7वां वचन में आप देखेंगे, पढ़िएगा। आओ आनंदित और मगन हो, आओ आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह क्योंकि मेमने की विवाह आ पहुंचा है, पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन, कैसा शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का, मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया है। तमिழ் நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே। शास्त्र में कहता है मेमना का शादी आ पहुंचा और उसका पत्नी अपने आप को क्या किया, बंदा श्रृंगार किया। पत्नी किससे श्रृंगार किया, प्रभु के वचन से ही अपने आप को क्या किया, श्रृंगार किया। धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का क्रिया, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह यीशु में जो क्रिया दिखने में आई, सेम क्रिया हमारे अंदर में भी क्या करना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। एलिया एलीशा के बारे में नबी बात करता है। एलिया जब अपना वस्त्र को एलीशा के ऊपर डाल दिया, उस दिन से वो अलग मनुष्य बन गया। हालेलुया। जब एक मनुष्य के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, उस दिन से वो मनुष्य एक अलग मनुष्य बन जाता है। हालेलुया। उसका जीवन चरित्र चेंज हो जाता है। करने वाला कौन, जीवन चरित्र को बदलने वाला कौन, मैं नहीं, आप नहीं, मसीह स्वयं हमारा बदलता है। आमीन। हमारी जुना स्वभाव, जुनी सारी बातों को प्रभु हमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है। हालेलुया। अब सारी संस्था के लोग सोच समझ कर बैठे हैं, नहीं हम मुड़ जाएंगे, हम चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, शादी का वस्त्र के बिना वहां आप क्या नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते।
और ये वस्त्र क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ये अभिषेक जिस मनुष्य के अंदर आता वो मनुष्य बलवान बन जाता है। नबी कहने के समय पर कहता ये वस्त्र एलिया के अंदर था, ये वस्त्र सिमसोन के अंदर था, ये वस्त्र शाद्रक मेशक अबेदनेगो के अंदर था, ये वस्त्र सारे प्रेरितों के अंदर था। आज यही वस्त्र किसके अंदर दिखने में आएगा? उसके दुल्हन के अंदर दिखने में आएगा। इस वस्त्र के बिना हम वहां जा ही नहीं सकते। हालेलुया। इस वस्त्र के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते? वहां जा नहीं सकते। यहां शास्त्र में कहता है आए हुए मेहमानों को देखने के लिए जब आप भीतर चला गया, वहां शादी के वस्त्र को ना पहना हुआ एक मनुष्य को वहां देखकर कहने लगा, ए मित्र, ये शादी के वस्त्र के बिना तू कैसे यहाँ आया? कोई भी संस्था आपको यहां तक पहुंचा नहीं सकता, कोई भी धर्म आपको यहां तक पहुंचा नहीं सकता, कोई भी सिस्टम आपको यहां तक क्या नहीं कर सकता? पहुंचा नहीं सकता। अगर यहां तक पहुंचना है कलाम को अपनाना पड़ेगा। कलाम के अनुसार पापों की क्षमा को क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा। नबी कहने के समय पर कहता, पतरस पेंटेकोस्त के दिन में खड़े होकर सबको आमंत्रित किया, सभी को न्योता दिया, मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, तब चल के तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है हमारी स्वभाव को चेंज करता है, हमारे जीवन जीने की तौर तरीका को क्या करता है? वो टोटली बदल देता है। प्रियो, अभी कहने के समय पर कहता, यदि आपके जीवन में आपको एक बहुत बड़ा व्यक्ति उसने आपको आमंत्रण किया खाने के लिए, आप उसके पास जाने के पहले अपने आप को एकदम अप टू डेट करके क्या करेंगे? जाएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में वर्णन करके वो बात करता है। अगर राष्ट्रपति किसी को भोजन के लिए बुला लिया, भाई आज रात आपको मेरे साथ में क्या करना है? खाना खाना है, तो यह आदमी कैसे भी गंदे मैले वस्त्र पहनकर या कैसे भी एड़ाचली करके नहीं क्या नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के भवन तक जा नहीं सकता। हालेलुया। उस राष्ट्रपति के भवन में जाने के पहले उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद उस राष्ट्रपति ने जो न्योता का कार्ड दिया उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दिखाना पड़ेगा, तब चल के वहां क्या मिलेगा? उसको एंट्री मिलेगा। उसके बाद नबी इस तरह से बात करता है, इस शादी के मेजबानी के अंदर बुलाए गए करके तुम लोग जो बोलते हो, तुम लोग इस दुनियादारी के लोगों के मानित जीवन व्यतीत करके, धूम्रपान करके, शराब पी के, यहां वहां घूमते फिरते दुनियादारी के अंदर पड़े रहकर फिर उसके बाद में आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस मेजबानी के अंदर जा सकता हूं? जा सकते हैं? एक राष्ट्रपति को मुलाकात करने के पहले आप अपने आप को क्या करना पड़ रहा है? ठीक करना पड़ रहा है। ये तो राष्ट्रपति नहीं है, यह आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता सृजनहार जिसने हमें बुलाया, उसके जीवनहार में यदि हमको जाना है तो इन सारी बातों से क्या करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। नबी कहता है तुम अपने आप को शुद्ध कर लो और इन सारी बातों से क्या करो? बाहर आ जाओ। अगर आप सच में प्रभु का न्योता आपको मिला है, इन सारी चीजों से आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। बाहर आकर प्रभु के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। परमेश्वर आपके हृदय में बातें करने के समय में उस शब्द को पहचानो, उस शब्द को आदर करो और वो जैसा प्रेरणा करता है आपको जीने के लिए, उस रीति से आप क्या करो? उसको फॉलो करो। यदि प्रभु
आपके पास बात करने के टाइम में आप हानाकानी करोगे तो दोबारा ये मौका मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है। वाक्य में शास्त्र में लिखा है, धर्मीजन 7 बार गिरेगा तो भी उसको मैं क्या करूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं 7 बार गिर के बाद में मैं आऊंगा करके, ऐसा है क्या? धर्मीजन 7 बार गिरेगा तो भी मैं उसको क्या करूंगा, उठाकर खड़ा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं 7 बार गिरूंगा 8वां बार के लिए इंतजार करूंगा ना। अब समय है, आज ही उद्धार का दिन है। क्या करना पड़ेगा? हम अपने आप को ठीक ठाक करके प्रभु के साथ में क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। देखिए मैं विश्वास करता हूं तुम लोग सच में उस बुलावट को यदि तुम लोग स्वीकार किए हैं तो आप लोग प्रभु के साथ में क्या करोगे, चलोगे। क्योंकि इस शरीर के अंदर जितने भी अशुद्ध कामें हैं वो सारे चीजों से हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर आएंगे। हिब्रू में लिखता है ना, तुमको दबाने वाले उन सारे पापों से तुम क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि दौड़ को शुरुआत करने वाला वही है और इस दौड़ को अंत करने वाला भी कौन है, वही है प्रियो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एलीशा के साथ मुलाकात होने के बाद एलिया ने जितना चमत्कार किया उससे डबल चमत्कार जो है एलीशा के जरिए प्रभु ने किया। एलिया ने जितना चमत्कार किया उससे डबल चमत्कार किसके द्वारा हुआ, एलीशा के द्वारा हुआ है। तो परमेश्वर का दास कहता है प्रभु परमेश्वर जो कुछ भी था उसको क्या कर दिया, यीशु मसीह के अंदर डाल दिया। और यीशु मसीह जो कुछ भी थे उसने क्या कर दिया, अपने कलीसिया के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। तो एलिया के बाद में एलीशा डबल पोर्शन काम। तो अब यीशु मसीह के बाद कलीसिया के अंदर क्या होना चाहिए, उस डबल पोर्शन काम होना जरूरी है और वो होगा जरूर। थोड़ा हम लोग प्रभु को काम करने के लिए जगह देकर हम लोग प्रभु के पीछे रहकर चलते रहेंगे। प्रभु का आगमन के पहले अंतिम समय का नबी जैसे बोला दुल्हन के द्वारा बड़ी बड़ी कामें होगी, वो होगा जरूर। जिस रीति से ये अकेला आदमी का सेवा नहीं है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को प्रभु ने क्या किया है, रखा है। और परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा कार्य करेगा, ये 100% सच है और वो करेगा जरूर। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग सिमसोन के बारे में देखते हैं। नबी कहता है सिमसोन के बारे में लोग चित्र निकालने के टाइम वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर के जैसा वो लोग क्या कर रहा है, उसका चित्र बना रहा है। बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है। सिमसोन इतना बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं है। वो एकदम डरने वाला बच्चा और हमेशा अपना माँ के साथ में चलने वाला बच्चा, माँ का पल्लू पकड़कर क्या करने वाला, वो चलने वाला है। और इतना ऊंचा भी नहीं है, इतना बॉडी बिल्डर भी नहीं है, वो एकदम साधारण आदमी था वो। लेकिन उसके अंदर ये सामर्थ्य कैसा आया, बोलता है वो जंगल में से जाने के समय में शेर उसके सामने आ गया। परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के अंदर आया। किसका आत्मा आया? परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के अंदर आया। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। योहान 4:24 वही कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना उपासना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। परमेश्वर आत्मा है। अब परमेश्वर का आत्मा जब सिमसोन के अंदर आया तब चल के वो बलवान बना। हालेलुया। तब चल के वो कौन बना? बलवान बना। वही आत्मा आज कलीसिया के अंदर आएगा। जैसे आदम को मिट्टी से रचा, आदम के नथनों में फुंकर मारा, आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। मतलब आदम के अंदर क्या आ गया? जान आ गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर अपने शिष्यों को बुलाकर फुंकर मारा और कहा तुम क्या पालो? पवित्र आत्मा को पालो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को कलीसिया पाता है,
कलीसिया जीवित रूप में खड़ा होता है। हालेलुया। जिस रीति से आदम उस फुंकर मारने के बाद वो जीवित आत्मा बन गया, उसी रीति से कलीसिया जब पवित्र आत्मा को पा लेता है, आपको पता है पेंटेकोस्ट के दिन में लगभग 120 लोग, उसके अंदर मरियम भी शामिल थे। अब वे लोग उस पवित्र आत्मा के लिए जब एकत्रित होकर प्रार्थना चल रहा था, कुछ लोग बोले, उठकर खड़े हो गए, बोला 7 दिन हो गया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया था उसी समय में हमको क्या मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया, चलो हम जाएंगे सेवा के अंदर। फिर कुछ दिन बीत गया, कुछ लोग बोले ना अभी 20 दिन हो गए भाई, चलो अपने को पवित्र आत्मा मिल गया, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है, चलो निकलते हैं हम लोग। पतरस बोला नहीं, योवेल के जरिए बोला गया शब्द पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। यशायाह नबी के जरिए बोला गया शब्द क्या होना चाहिए, पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक भविष्यद्वक्ताओं का भविष्यवाणी का कौन है, वो आंसर है, उत्तर है वो। अब यहाँ ये लोग इंतजार कर रहा है, जो पवित्र आत्मा आने के बाद जो काम होगा करके भविष्यवाणी के किताबों के अंदर जो लिखा गया है वो पूरा होना क्या है, जरूरी है। जब वो वचन पूरा हुआ, लोग बोले ये सब पियकर गैंग किधर से आ गया, सारा पियकर गैंग किधर से आ गया, क्यों? वहां सब अपने अपने लोग वहां अन्य भाषा बात करने लगे, पवित्र आत्मा अग्निमय जीव के माने सभी के ऊपर आकर क्या हो गया, बैठ गया। अब बैठने के बाद सब लोग, प्रभु ने जिन जिनको जो भाषाएं दी उन भाषा के जरिए क्या कर रहा है, वो लोग बातें करने के लिए शुरुआत की। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब वो लोग बात करने लगा, वहां भिन्न भिन्न देशों से आया हुआ लोग भी वहां मौजूदगी में थे, और वो लोग कहने लगे ये लोग किसका भाषा बात कर रहा है, अपना भाषा बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वहां बात करने वालों के लिए वो क्या था, अन्य भाषा था, वहां सुनने वालों के लिए वो क्या नहीं था, अन्य भाषा नहीं था, वो अपना भाषा था। हालेलुया, हालेलुया। बालाम जा रहा है गधे के ऊपर बैठकर, सामने नंगा तलवार के साथ में दूत खड़ा है, बालाम की आंख बंद है, लेकिन गधा का आंख खुला था। हालेलुया। गधा का आंख खुला, वो गधी ने क्या किया, आगे जाने के लिए मना कर रहा है, बालाम मार रहा है उसको। प्रभु ने गधी के ऊपर क्या किया, दया किया, दया करके उस गधे का मुंह को क्या कर दिया, खोल दिया। हालेलुया। गधे का मुंह को खोला तो गधा बालाम के साथ में बातें की। गधा के लिए वो अन्य भाषा था, लेकिन बालाम के लिए वो अपना भाषा था। हालेलुया। शास्त्र लेख के अंदर जहां तक मुझे नॉलेज है, 2 जानवर इंसान के साथ में क्या कर रहा है, बात किया है। एक सर्प बात किया है, और एक कौन बात कर रहा है, इधर गधा क्या कर रहा है, बात कर रहा है। देख लेना, वहां सारे लोग अपने अपने भाषा में क्या करने लगा, सुनने लगा। शास्त्र लेख कहता है 2 अध्याय के अंदर, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आइए, 14 और 15 को पढ़िए। 14, 15, 16। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है। वाकई में वो लोग नशे में नहीं था। अन्ना बैठकर प्रार्थना कर रही थी, ये नहीं बोलता सुबह सुबह दारू पीकर आ गई। अन्ना नशे में थी क्या? अन्ना नशे में नहीं थी। अपने पूरे मन को प्रभु के पास क्या कर दिया उसने,
उंडेल दिया मतलब अपने आप को भूल कर प्रभु से बातें कर रहे थे। आज प्रभु का ऐसा मंडली चाहिए जो प्रभु के भवन में आए और अपने आप को भूल कर प्रभु के साथ में क्या करे, वार्तालाप करे। हालेलुया। ये नहीं बोलता क्या सवेर से मेरे पी के आ गई, अन्ना बोलती है बाबा तुम जैसा समझ रहा है वैसा मैं पिएली नहीं है। हालेलुया। मेरा मन में बहुत क्लेश है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। उन सारी बातों को किसके पास उंडेल दिया मैंने? प्रभु के पास उंडेल दिया। हालेलुया। आज देश विदेश में चलने वाले पापमय जीवन के अंदर फंसे हुए लोगों के लिए रोकर प्रभु के पास गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। हालेलुया। जो नशेली चीजों के अंदर पड़ा है, जो परमेश्वर के लिए जो अप्रिय चीजों के अंदर लोग पड़ा है, उन सब लोगों को प्रभु के पास आने के लिए मंडली क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। एजेकिएल में आप देखेंगे तो ऐसे जो लोगों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो दूत को बोलता है उन लोगों को जाकर तू क्या करना? उस निशानी को डालना। आमीन। और वो निशानी क्या है? पवित्र आत्मा है प्रियो। यहां लोग शराब पिए नहीं, लेकिन प्रगटीकरण से भर गए थे। हालेलुया। किससे भर गए थे लोग? प्रगटीकरण से भर गए। किधर का प्रगटीकरण? कोई संस्था का प्रगटीकरण नहीं। हालेलुया। किधर का प्रगटीकरण? स्वर्ग का प्रगटीकरण से ये लोग क्या हो गए? भर गए। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें जो प्रकाश मिला है उस प्रकाश के अंदर हम उत्तम से क्या करेंगे? प्रभु के साथ में हम लोग दौड़ेंगे। यहां बोलता है कि 15वें वचन में तुम लोग जिस रीति से सोचते हो वैसे ये लोग पियक्कड़ लोग नहीं है। अब ये तीसरा पहर है और भविष्यद्वक्ता योएल के जरिए जो बोला गया ये कार्य अभी क्या कर रहा है? इधर पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, कलीसिया हमेशा परमेश्वर के आत्मा में मध्यस्थ होकर रहना चाहिए। हालेलुया। सारी संसार की चिंताओं को हटा दो। कोई किसी को जबरदस्ती स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता। वचन सबके लिए काम आता है। वचन को समझो, वचन के अनुसार अपने स्थान को प्रभु के अंदर बनाओ, तब चलकर तुम क्या करोगे? परमेश्वर के राज्य के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पतरस सभी को न्योता दिया। हालेलुया। ये सेम वस्त्र सिमसोन के अंदर था। अब ये वस्त्र सिमसोन के अंदर ये छुपा हुआ वस्त्र है। हालेलुया। कैसा वस्त्र है ये? छुपा हुआ वस्त्र। दुल्हन को प्रभु कैसे मन्ना से खिलाता है? छुपा हुआ मन्ना, गुप्त मन्ना से क्या करता है? वो अपने दुल्हन को वो तृप्त कराता है। इसके बाद में नबी कहता है कि दानियल के अंदर ये वस्त्र था। ये वस्त्र एक छुपा हुआ वस्त्र। ये वस्त्र से वो जब पहनकर वो सिया के गुफा के सामने खड़ा, वो सिया उसके खिलाफ कारोबार कर नहीं सका। हालेलुया। आज दुल्हन को वही वस्त्र चाहिए। आज दुल्हन को वही वस्त्र चाहिए जो वस्त्र जैसे एलिया उठाए ले जाने के समय में वहां एलीशा को बोला, मैं जाने के समय में अगर तू मुझे ताकते रहेगा, तू जो मांगा वो डबल पोर्शन तुझे क्या करेगा? मिलेगा। एलीशा ने काम काज छोड़कर उसके पीछे लग गया और जैसे जैसे नजर उसके ऊपर रखते गया परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह आकर बलिदान होकर परमेश्वर उन लोगों के बीच में से जाने के समय में दो देवदूत लोग आकर गलीलियों के बीच में बात कर रहा है। एक गलीली के लोगों, ऊपर के ओर क्यों ताक रहे हो? वो जैसा गया वैसे ही एक दिन में क्या करेगा? वापस आएगा। हालेलुया। नबी कहता है मसीह गया, जैसे एलीशा गया वस्त्र को डाल दिया किसके ऊपर? एलिया ने एलीशा के ऊपर डाल दिया। सेम टाइम में यीशु मसीह गए और 50वें दिन में, पेंटेकोस्ट के दिन में अपना वस्त्र जो पवित्र आत्मा है उसको कलीसिया के ऊपर क्या कर दिया? डाल दिया। हालेलुया। आज इस वस्त्र को पाकर अपने आप को क्या करो? तैयार करो। प्रभु का आगमन बहुत
नजदीक है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ आकर बड़ा प्यार से पूछता है, ये मित्र, तू ये वस्त्र के बिना कैसा इधर आ गया? रोमन कैथलिक इस मेजनहार में आपको भेज नहीं सकता। उसके अंदर से निकला हुआ सारी उसके बेटियां, प्रकाशित वाक्य 17 और 18वां अध्याय के अंदर एकदम क्लियर कट बात करता है, ये कौन है और उसके बच्चे लोग कौन है। ये लोग इस चेवनहार में भेज नहीं सकता। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना गाड़ी में, कभी कभी बात करने के टाइम बोलते हैं, अरे भाई आप एक मार्ग से स्वर्ग जा रहे हो और हम लोग भी एक मार्ग से क्या कर रहे हैं, उधर ही आने वाला। मैं बोला वो कैसे? बोलता देखो अभी करजत से गाड़ी जाती है कि नहीं? बोला हाँ जाती है। किधर जाती है? CST जाती है। ओके। कसारा से गाड़ी जाती है कि नहीं? बोला हाँ जाती है। किधर जाती है? CST। बराबर है। कसारा से भी गाड़ी निकल रहा है, करजत से भी गाड़ी निकल रहा है, वेस्टर्न से भी गाड़ी निकल रहा है, सब CST पहुंच रहा है। अच्छी बात है, ये गाड़ी है पहुंचेगी। ये CST कॉमन है, ये स्वर्ग कॉमन नहीं है। हालेलुया। ये उठाए ले जाना कॉमन नहीं है, सबके लिए नहीं है। हालेलुया। यहाँ जाने के लिए एक ही मार्ग है और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके अलावा कोई भी उधर क्या नहीं कर सकता। इधर करजत का सारा बिरार का काम नहीं है, इधर यीशु मसीह का लहू का काम है। हालेलुया। उसके लहू के बिना कोई भी आदमी इस जीवनहार में क्या नहीं कर सकता, भाग नहीं ले सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अभी भी मौका है, सारी दुनियादारी को छोड़ो और परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। हम लोग कभी आज के दिन में कभी दुख नहीं मनाते, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे लिए कौन सा दिन है, आनंद का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार मैं जालना में प्रीच किया था इसके बारे में, संदेश फिनिश होने के बाद एक बंदा आकर बोलता है, आओ इतकं वर्ष आम्ही फुकट या दिवसाला दुःखाचा दिवस म्हणून मानायचे, आज त्याचा सत्य काय है आम्हाला कळलं। हालेलुया। तो ये दुख का दिन है, ये क्या है, आनंद का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमको शादी के लिए क्या मिला, बुलाहट मिला। प्रभु ने हमको क्या किया, बुलाया। अगर वो नहीं बढ़ता, हमारा पापों की क्षमा नहीं होता, हमारे पापों की क्षमा नहीं होता तो पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अगर पवित्र आत्मा नहीं मिलता तो हम इस जीवनहार के लायक नहीं बनते। तो इसलिए आज का दिन खुशी का दिन है। हालेलुया। तो हम लोग ऐसे ही बैठेंगे।